Hello everyone, welcome back again. So student, today we will start our chapter Tick 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 from page number 39. Okay, so let's start from the page number 39, and in that page you have one question, and in that question what you have to do, just check, draw where the hands will be. Okay, so in that question you have to check where the hands will be. Okay, it means आपकी जो small and big hands है वो कहाँ पर होंगी. Okay, so just check for the first question. 20 minutes after 6 o'clock. Okay, so 20 minutes after 6 o'clock means what is your 6 o'clock? It's your small hand, that is your big hand at 12. It's your sharp 6 o'clock. And 20 minutes after, so 5, 10, 15 and 20. So 20 means it's at 4. So 20 means your big hand located at 4. So after that your big hand comes at 4. So here 20 minutes after 6 o'clock means your small hand at 6 and your big hand at 12. Okay, and you can do it with this method also. Just divide 20 by 5 and you will get 4. It means the location of your big hand is at 4. Okay, and why we will divide it by 4? Because the difference between two numbers are 5. Okay, 5 minutes or 5 seconds. Clear? Now just check it for the another question, and that is 30 minutes after 8 o'clock. Okay, so 30 minutes after 8 o'clock means 8 plus 30 means, so that is your 8:30. 30 minutes after 8 o'clock means 8:30. So just locate, so just mention 8:30 here. That is your small hand at 8 and that is your big hand at 6. Okay, why 6? Because 30 means a revolution from 12 to 6. Okay, 30 divided by 5, so your answer is 6. It means your big hand located at 6, it means that is 30 minutes. So your answer is this one, 8:30. Now just check it for the another question. Question number C. 10 minutes after 7 o'clock. Okay, so 7 plus 10 means that is 7 hour 10 minutes. Okay, so 7 hour means your small hand. 7 hour means your small hand at 7, and 10 means 5 plus 5, that is 2. So your big hand at 2. That is your 10 minutes after 7 o'clock or 7:10. Next is question number D. 15 minutes after 5 o'clock. Okay, so 15 minutes after 5 o'clock means that is 5:15. So your small hand at 5 and your big hand at 3. Why 3? 15 divided by 5 is equals to 3, or 5 plus 5 10 and 10 plus 5 15. So that is your 5:15. Okay, small hand at 5 and the big hand at 3. Clear? Now your next question is, how long does your school assembly take? It means आपके स्कूल के असेंबली को होने में कितना टाइम लगता है. Okay, so our answer is 20 minutes. Okay, हमारी स्कूल असेंबली में कितने टाइम लगता है? 20 minutes. How long is your lunch break? Still it's also 20 minutes. आपका जो लंच ब्रेक होता है वो कितने टाइम का होता है? 20 minutes. How long is your game period? So that is 35 minutes. आपका गेम पीरियड कितने मिनट्स का होता है? 35. Is it the same as all the other period? Yes. क्या ये अदर पीरियड के अकॉर्डिंग ही होता है? Yes. आपका जो सब्जेक्ट पीरियड होते हैं वो भी 35 मिनट्स के होते हैं, और आपका जो गेम पीरियड होता है वो भी 35 मिनट्स का होता है. Clear? Now come to the page number 40. And in that page they given us lots of activities, and you have to mention here which activity take how many minutes. For example, first is boiling 1 liter milk. So आपको first guess करना है कि 1 लीटर मिल्क को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा, और आफ्टर दैट आपको घर में चेक करना है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है.
फर्स्ट आप गैस करेंगे, उसके बाद आप उसको घर में चेक करेंगे कि 1 लीटर मिल्क को बॉयल होने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिलिंग अ बकेट, एक बकेट को भरने में कितना टाइम लगता है, सो आप घर में चेक कीजिए। बकेट को भरने के लिए लगाइए अपनी क्लॉक में टाइम चेक कीजिए, फिर जब बकेट भर जाती है देन टाइम चेक कीजिए और उसके बाद उनका डिफरेंस चेक कीजिए। स्वीपिंग योर रूम, एक रूम को साफ करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट इज इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड्स में आप कितनी बारी काम कर सकते हैं। स्नैप योर फिंगर, आप चुटकी कितनी बार बजा सकते हैं, चेक कीजिए। स्किप अ रोप, आप रोप से कितनी बार स्किप कर सकते हैं। जंप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आप कितने टाइम कूद सकते हैं। ओके, एंड इन डी क्वेश्चन this is for you. Okay, mention one activity here. Okay, and here mention the time. Okay, just for example आप 1 मिनट में कितनी बार अपनी आइज़ को झपका सकते हैं, अपनी आँखों को झपका सकते हैं। सो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं आप, या अपनी हैंड को कितनी बार आप शेक कर सकते हैं उसे मेंशन कर सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप बिना रोके कितनी देर तक बोल सकते हैं, चेक एंड मेंशन हियर। स्टैंड ऑन 1 लेग, आप 1 लेग, एक पैर पे कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं, मेंशन हियर। सिंग आप बिना रुके कितनी देर तक बोल सकते हैं, मेंशन हियर। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस, आप 50 मीटर की रेस कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, मेंशन। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, आप ज़मीन से 50 पेबल्स, 50 जो आपके पेबल्स हैं, पत्थर हैं, उनको कितनी देर में कलेक्ट कर सकते हैं। काउंट 1 to 100, और 1 से 100 तक की काउंटिंग कितनी देर में कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस पेज नंबर 40 इज़ ओनली फॉर यू। ओके, आपको इस पेज में वो चीज़ें मेंशन करनी है जिसको आप कितनी देर में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक्टिविटी का टाइम मेंशन करना है और ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। Next, come to the page number 41. Looks at the clock again. Solve this time. आपको क्लॉक को अगेन दोबारा से चेक करना है और देन आपको टाइम को चेक करके यहाँ पर मेंशन करना है। The minute hand start from 2. How many minutes will it take to come back to again? Okay, आपकी जो एक सपोज दैट एक क्लॉक है, उसकी जो मिनट की हैंड है वो 2 से स्टार्ट होती है और एक पूरा रोटेशन लेके अगेन 2 पर आ जाती है। क्लियर? सो उसको कितने मिनट्स लगेंगे? सो वी नो अ कंप्लीट रोटेशन मीन्स 60 मिनट्स। ओके, क्लॉक में टोटल 60 मिनट्स होते हैं। सो 2 से अगेन 2 तक आने में जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो उनको लगेंगे टोटल 60 मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द हार हैंड, does it also move, how long it take to move from one number to the next। ओके, जब आपकी मिडिल जब आपके जो बिग हैंड है अगर वो 2 से देन अगेन 2 पर आ जाती है तो क्वेश्चन ये है कि जो आपकी हार हैंड है, ओके, जो आपकी स्मॉल हैंड है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसमें भी मूवमेंट होगा? यस। ओके, और उसमें क्या मूवमेंट होगा, जो आपकी स्मॉल हैंड है वो 1 डिजिट से शिफ्ट होके अनदर डिजिट पे आ जाएगी। वाई? बिकॉज जब आपकी जो बिग हैंड है एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है तो कंप्लीट 1 हार हो जाते हैं। ठीक है, बिग हैंड जब एक कंप्लीट रोटेशन करती है सो टोटल 1 हार हो जाते हैं और जब आपके 1 हार कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो स्मॉल नीडल है वो शिफ्ट होके दूसरे नंबर पे आ जाएगी। क्लियर? Next is look around you and list the activity that take about 1 hour to complete। आपको अपने आसपास देखना है और ऐसे एक्टिविटीज़ के नए मेंशन करने हैं जिसको होने में कम से कम 1 हार लगते हैं। ठीक है, सो आपको एटलीस्ट 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है जिनको कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 1 हार लगते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल फिलिंग अ टैंक, एक टैंक को भरने के लिए 1 हार से ज़्यादा लग सकते हैं। ओके, कुकिंग करने में आपको 1 हार से ज़्यादा हो सकते हैं। एक क्रिकेट मैच जो है वो 1 हार से ज़्यादा का होता है। क्लियर? सो आपको यहाँ पे ऐसी ही 5 एक्टिविटीज़ को मेंशन करना है। नेक्स्ट इज आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। आपको अपने फादर से पूछना है कि क्या वो आपकी मदर से ज़्यादा फास्ट कुक कर सकते हैं। अगर वो यस कहते हैं सो मेंशन हियर यस, इफ़ ही सेड नो सो मेंशन हियर नो।
विच गेम टेक लेस देन एन हार टू फिनिश, ऐसा कौन सा गेम है जिसको फिनिश होने में 1 हार से कम लगते हैं। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो वो आपका कैरम हो सकता है, लूडो हो सकते हैं। क्लियर। सो आपको यहाँ पर कोई सा भी एक गेम का नेम मेंशन करना है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, एक फुटबॉल मैच को होने में कितना टाइम लगता है। In next page we will discuss about a girl whose name is Rani. Okay, come let's go to see my new baby sister. Okay, so यहाँ पे गर्ल है जो कहती है अपने फ्रेंड को कि चलो 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 मेरे संग चलो और मेरी छोटी बहन को देखने चलो। So माँ I have brought sweet to मुनिया, तो वो कहती हैं कि माँ मैं मुनिया के लिए कुछ स्वीट्स लाई हूँ। तो मम्मा क्या कहती है, शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, वो क्या है वो नहीं खा सकती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है। एंड शी डजंट इवन टॉक, बल्कि खाना तो बहुत दूर की बात है, वो अभी बोल भी नहीं सकती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। ओके, तो वो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, स्लोली स्लोली करेंगी जैसे जैसे वो बड़ी होंगी। जो रानी है मुनिया की एल्डर सिस्टर, वो क्या करती है, मुनिया की सारी एक्टिविटीज़ को एक डायरी में मेंशन करती है। तो एज यू कैन सी हेयर ऑन 5 मार्च 2005 मुनिया इज़ बॉर्न टुडे। सो मुनिया जो है वो कब पैदा होती हैं, 5 मार्च 2005। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, और 15 सितंबर 2005 को उनका पहला दांत आता है। 10 नवंबर 2005 को मुनिया जो है वो बैठने लगती है। 20 नवंबर 2005 को मुनिया क्रोलिंग यानी कि लुढ़कने लगती है। 5 जनवरी 2006 को मुनिया खड़ी होने लगती है। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने एक बनाना खाया था। 2 फरवरी 2006 को मुनिया जो है वो धीरे धीरे करके चलने लगती है। सो यहाँ पर जो है मुनिया की सारी एक्टिविटीज़ का कलेक्शन है। अब इन्हीं कलेक्शंस के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स चेक। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। सो मुनिया को जो फर्स्ट टूथ आया था वो था 15 सितंबर 2005 को। क्लियर। हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। सो मार्च से सितंबर के बीच में मुनिया के जो दांत हैं, उनके जो तीत हैं, उनको आने के लिए कितना टाइम लगा। सो जस्ट काउंट इन योर फिंगर। आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सो टोटल 6 मंथ। सो हियर इज आंसर इज 6 मंथ्स। टोटल उनको क्या है 6 मंथ का, अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है। सो 6 मंथ का उनको टोटल टाइम लगा था उनके दांत को आने के लिए। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वैन। मुनिया कितने टाइम की थी, कितने साल या कितने मंथ की थी जब शी फर्स्ट सेटअप, जब वो सबसे पहले बैठने लगी थी। तो 10 नवंबर को मुनिया जो है वो बैठने लगी थी और 5 मार्च को जो है वो बॉर्न हुई थी। सो अगेन आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सो टोटल दैट इज 8 मंथ्स। ओके, एंड वो 5 मार्च को हुई थी एंड 10 नवंबर को वो बैठने लगी थी। सो द करेक्ट आंसर इज 8 मंथ्स 5 डेज। 5 को वो पैदा हुई थी और 10 को वो बैठने लगी। तो 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है और मार्च और नवंबर के बीच में 8 मंथ का डिफरेंस है। सो आंसर इज 8 मंथ 5 डेज। ओके, नेक्स्ट इज शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। उनका जो फर्स्ट दांत था वो कब आया था। सो हियर द आंसर इज 6 मंथ्स and 10 days. Why 10 days? Just check, because here is 5 March and here is 15 September. So difference between March and September is 6 months, but difference between 5 and 15 is 10 days. So the correct answer is 6 months 10 days. Okay, now check the next question. What did she do first? उसने पहले सबसे पहले कौन सा काम किया था, वॉकिंग और ईटिंग अ बनाना। सो वॉकिंग। क्लियर।
उन्होंने वॉक किया था 2 Feb 2006 को और बनाना खाया था 5 सितंबर 2006 को। सो जो हमारे ईयर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो 2 Feb पहले आया गया, 5 सितंबर 2 Feb। सो फर्स्ट शी स्टार्टेड वॉकिंग एंड आफ्टर देन शी ईट अ बनाना। नेक्स्ट इज क्रोलिंग और स्टैंडिंग। सो आंसर इज क्रोलिंग। वो सबसे पहले खड़े होना शुरू हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्रोलिंग करना शुरू किया था। सो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो पहले लुढ़कना शुरू करता है फिर खड़ा होता है। सो द राइट आंसर इज क्रोलिंग। Now come to the next page and that is your page number 45 and in that page we can see a growing cycle of a puppy. So Rani had a pet puppy. रानी के पास जो है एक पेट पपी मतलब कुत्ते का बच्चा भी है। आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आई, शी वॉच इट ग्रो लाइक दिस। और वो जब आफ्टर 2 वीक्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी आईज़ ओपन करते हैं और जो रानी है वो इनको ग्रो होते हुए देखती है। सो तो देखते हैं कि रानी क्या ऑब्जर्व करती है। शी ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ। 3 वीक्स के बाद जो होते हैं उनका पहला दांत आ जाता है। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वोबलिंग। आफ्टर 4 वीक्स जो है वो अपने आसपास घूमना शुरू कर देते हैं पर थोड़ा थोड़ा गिरते भी हैं साथ में। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ। और जब वो 7 मंथ के होते हैं तो उनका क्या है, टीथ का पूरा सेट आ जाता है। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग। 1 साल बाद जो है वो एक ग्रोन अप डॉग यानी कि एडल्ट डॉग हो जाते हैं और उनके खुद के पपीज़ हो जाते हैं। ओके, सो जस्ट चेक 3 वीक्स टीथ, 4 weeks walking, 7 month full set of teeth and 1 year a grown up dog. Now make a timeline of this dog life in your notebook. So अब आपको क्या करना है, नोटबुक में मेंशन करने 3 weeks फर्स्ट teeth, 4 weeks first walk, 7 month complete set of teeth and 1 year adult dog। आपको ऐसे करके एक टाइमलाइन बनानी है। नाउ नोट द डिफरेंस बिटवीन द मुनिया एंड रानीज पपी। सो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए चेक करना है कि जो मुनिया है और जो वो बेबी पपी है, पेट पपी है, उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ड्यूरेशन का क्या गैप रहा। ओके, सो जस्ट चेक। स्टार्ट वॉकिंग। सो अकॉर्डिंग टू द मुनिया टाइमलाइन शी स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर 11 मंथ। वो 11th मंथ में वॉक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, एंड जो आपका पपी है उन्होंने ये काम कर दिया था स्टार्ट 4 वीक्स में। सो हियर द आंसर इज 4 वीक्स। नेक्स्ट इज ईट फूड फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वो कब खाना खाती हैं, तो यहाँ थी उन्होंने 1 ईयर 2 मंथ्स में फर्स्ट बनाना खाया था। क्लियर। बट जो आपका बेबी पपी था उसने क्या कहा था, 3 वीक्स में ही खाना खाना शुरू कर दिया था। तो आंसर इज हियर 3 वीक्स। नेक्स्ट इज गॉट द फर्स्ट टूथ। जो मुनिया की सिस्टर, जो मुनिया थी रानी की सिस्टर, उनका जो फर्स्ट टीथ आया था वो कब आया था, 6 मंथ में। क्लियर। लेकिन जो आपके बेबी पपी था उनका जो फर्स्ट टीथ था वो कब आ गया था, 3 मंथ्स में। ओके, सो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बेबी है उनको एक्टिविटीज़ करने के लिए या ग्रोन अप होने में एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर। वाई? बिकॉज जो ह्यूमन्स का लाइफ स्पैन होता है, ह्यूमंस की जो लाइफ होती है वो एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स और बर्ड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमंस में जो ग्रोन अप साइकिल होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ह्यूमंस एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स स्लोली ग्रोन अप होते हैं और बहुत स्लोली ही उनकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म होती है। बट एनिमल्स में क्या होता है, ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, इनके बेबीज़ होते हैं और ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ ये सारे एनिमल्स में एक जैसा नहीं होता है। क्लियर। कुछ एनिमल्स आपके जो होते हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा भी लाइफ स्पेंड करते हैं, जस्ट लाइक एलिफेंट। जो आपके टॉर्टॉइज होते हैं उनकी लाइफ आपकी 200 से 300 ईयर्स तक हो सकती है। क्लियर। सो कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ही है या फिर ह्यूमंस से भी ज़्यादा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45।
डू ऑल एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड? नो, सारे एनिमल सेम स्पीड से ग्रो नहीं करते हैं। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ, अ बर्ड। ओके, सो हैन, जो आपने छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं उन्हें देखा होगा। सो जो हैंस होती हैं, उनके जो चूज़े होते हैं, छोटे छोटे उनके जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी ही अंडों से बाहर आने के बाद धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फिर वो एग्स देने स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी ही उनकी लाइफ जो हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। बट जो काऊ होती है, काऊ जो होती है 2 to 3 ईयर्स में वो एडल्ट होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं और वो उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 to 16 ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकता है। बट एंड थर्ड वन इज़ बर्ड। जो बर्ड होती है उनका जो आपका लाइफ स्पैन होता है वो कुछ आपका हैंड्स के जैसे भी होता है। जो आपकी बर्ड्स होती हैं, आपकी बर्ड्स भी क्या हो जाती हैं, बहुत जल्दी ग्रो करती हैं और बहुत जल्दी ही उनकी लाइफ ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर आप ग्रोथ की बात करें तो आपकी जो काऊ है उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू हैन एंड बर्ड, और उनका जो लाइफ टाइम होगा, लाइफ स्पैन होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगी और जिंदा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू हैन एंड बर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ पिक्चर ऑफ बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। अब आपको क्या करना है, एक बेबी एनिमल और एक बिग एनिमल। सपोज दैट अगर आपने काऊ बनाई है तो आपको उनके साथ में एक काऊ का बेबी भी बनाना होगा। तो आपको एटलीस्ट ऐसी 2 to 3 पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको ग्रैंडफादर्स की कुछ पिक्चर्स दिखेंगी जिन्होंने फोटोग्राफ के लिए पोज किया है। सो फर्स्ट इज एलिफेंट, सेकेंड वन इज अ रैट एंड थर्ड वन इज अ ह्यूमन। हु लुक्स द ओल्डर टू यू? आपको इनमें से सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन लग रहा है? सो आंसर इज रानीज ग्रैंडफादर। जो यहाँ पर रानी के ग्रैंडफादर हैं वो अप्पू के ग्रैंडफादर और चूचू रैट के ग्रैंडफादर से क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं। वाई? बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो टाइम के साथ साथ धीरे 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 डल होनी शुरू होती है, और जैसे ही वो ओल्ड होते हैं उनकी स्किन पे, उनकी आइज़, उनके हेयर्स के थ्रू आपको क्या उनकी एज का पता लगना शुरू हो जाता है। बट ये सेम चीज़ें आपके एनिमल्स में नहीं होती है। सो हियर वी हैव सम क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मच ओल्ड इज़ अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? जो अप्पू के ग्रैंडफादर हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड हैं? सो जो अप्पू के ग्रैंडफादर हैं उनकी एज 95 है और रानी के ग्रैंडफादर की एज 70 है। सो उनकी एज का डिफरेंस जो है वो है 25 ईयर्स का। विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? नो। क्या जो चूचू रैट है उनके ग्रैंडफादर कभी अप्पू के ग्रैंडफादर के जितने ओल्ड हो सकते हैं? क्या किसी रैट की एज 95 हो सकती है? नो। क्योंकि वाई? बिकॉज जो रैट्स होते हैं वो एक स्मॉल क्रिएचर है, स्मॉल एनिमल है, और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा नहीं है। ये बहुत जल्दी ही ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी ही ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच यंगर इज़ चूचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? जो चूचू रैट हैं इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने यंग हैं? सो रानी के ग्रैंडफादर 70 ईयर्स के हैं, चूचू के ग्रैंडफादर 2 ईयर्स के हैं। सो इनके बीच में है टोटल 68 ईयर्स का डिफरेंस। सो जो चूचू रैट है उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से 68 ईयर्स यंग हैं। ओके, नाउ जस्ट चेक पेज नंबर 46. So in page number 46 here we have 2 students. Okay, so first is Shabana and another one is Atif. Okay, so they both are writing a letter for each other. They are discussing about holidays. ये दोनों एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं और अपने हॉलीडेज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आतिफ जो है वो शबाना के लिए लेटर लिखते हैं, और वो कब लेटर लिखते हैं? 1/5/2006. So 5 means May. Okay, so here 1 मई 2006 को वो क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं आतिफ, किसके लिए? शबाना के लिए। वो क्या कहते हैं? डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आप कैसी हो?
आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ. आवा माई हॉलीडे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006. इट मीन्स 5 मई 2006 को वो कहाँ जा रहे हैं? अपने नानी के घर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं. और उनकी हॉलीडेज स्टार्ट कब से हुई है? यस, 1 मई 2006 से. माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30/6/2006. और 30/6 मीन्स जून. सो 30 जून से उनके जो है स्कूल ओपन हो जाएंगे. When does your school close? तुम्हारे स्कूल कब क्लोज हो रहे हैं? Why don't you come here? तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? We will have great fun. और हम खूब मस्ती करेंगे. ठीक है. तो जो शबाना है उनको ये लेटर मिलता है 6 मई को. ओके. सो 1 मई को उन्होंने वो लेटर लिखा था अजमेर से, और वो नागपुर तक पहुँचने में उसको टाइम लगता है 6 मई तक का. ओके. सो 1 से 6 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो, सो टोटल आपको डिफरेंस पता लगेगा 5 डेज़ का. ओके. 1 को उन्होंने पोस्ट किया था, 6 को वो उनको मिला, तो आपको टोटल जो टाइम है वो लगा 5 डेज़ का. क्लियर. सो अब जो शबाना है वो आतिफ के लिए लेटर लिखती हैं 7 को. नेक्स्ट डे 6 के बाद 7 आता है. 6 मई को उन्हें लेटर मिला था, तो 7 मई को वो लेटर लिखना स्टार्ट करती हैं और आतिफ को जवाब देती हैं, डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर. मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. मुझे कल आपका लेटर मिला. हैप्पी हॉलीडेज़. तुम्हें हॉलीडेज़ बहुत बहुत मुबारक हो. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006. तो उनके जो स्कूल क्लोज हो रहे हैं वो 1 जून को हो रहे हैं. बट जो आपके आतिफ थे उनके स्कूल कब क्लोज हुए थे? 1 मई को. ओके. तो शबाना के 1 जून से हो रहे हैं और उनके 1 मई से ही क्लोज हो चुके हैं. इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त. उनके जो स्कूल हैं शबाना के वो 10 अगस्त को ओपन हो रहे हैं, बट जो आतिफ हैं उनके स्कूल ओपन हो रहे हैं 30 जून से. आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून. तो हम क्या है, हम स्कूल की तरफ से गोवा की ट्रिप पे जाएंगे और 7 जून को हम वापस आएंगे. तो 1 जून को उनके हॉलीडेज़ होंगे, वो गोवा की ट्रिप पे जाएंगे और 7 जून को वो वापस हो जाएंगे. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. और मैं उसके बाद यानी कि 7 जून के बाद ही आने का ट्राई करूँगी अजमेर में. आतिफ रोट हिज लेटर ऑन. आतिफ ने लेटर लिखा था 1 मई को. यू रिमेंबर हाउ वी राइट द डेट इन नंबर्स. सो इसमें जो फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेट को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, और 06 रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को. ओके. सो अब इस थीम पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट इज, here you have to write these dates in the standard form. Okay. So what is the standard form? 5/5/2006 means 5 May 2006. 25/2006 means 20 May 2006. Okay. 7/6/2006 means 7 June 2006. 1/1/2007 means 1 Jan or January. 1 means January na. Our first month is January. So 1 January 2007. Okay. So here 5 means May, 6 means June and 1 means January. Next is write these date in numbers. अब आपको यहाँ पर मंथ को मेंशन किया हुआ है, आपको उनको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है. सो 1 जून 2006. सो 1 जून इज 6th मंथ. जून हमारा 6th मंथ होता है एंड 2006. 30 मई. 30 मई. मई दैट इज योर 5th मंथ एंड 2006. 10 अगस्त. सो 10 अगस्त इज योर 8th मंथ. ओके. एंड 2007. Next is, how long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? Okay, so उन्होंने लेटर लिखा था 1st को और वो मिला 6 को. सो टोटल यहाँ पे हुए आपके 5 days.
अजमेर से नागपुर तक आने में लेटर को लगे 5 डेज। हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। जो आतिफ है वो अपनी नानी के घर में कितने दिन रहेंगे। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो अपनी नानी के घर कब जाते हैं, 5 मई को, और वापस कब आते हैं, 20 मई को। सो 20 मई, अगर वो 5 को जाते हैं 20 को वापस आते हैं, सो इट मीन्स 20 - 5 इज इक्वल्स टू 15। सो टोटल वो अपनी नानी के घर पे रहते हैं 15 डेज के लिए। क्लियर। सो हियर द आंसर इज 15 डेज। Now fill in the tables शबाना's holiday and आतिफ holiday। सो शबाना के जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से। क्लियर। और उनके स्कूल कब रीओपन हो रहे हैं, 10 अगस्त को। क्लियर। सो 1 जून टू 10 अगस्त टोटल कितने डेज़ हुए। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपका जून है वो 30 डेज़ का है, जून के बाद जो आपका जुलाई है वो 31 डेज़ का है, और अगस्त को अगर 10 अगस्त को स्कूल रीओपन हो रहे हैं, इट मीन्स उनकी 1 to 9 अगस्त तक छुट्टी है। सो 9 डेज़ आपके ये हो गए। ओके। तो 30 आपका जून, 31 जुलाई और अगस्त के 9 डेज़। सो टोटल ये आपके हो गए 70 डेज़। 30 + 31 61, 16 + 1 61 + 9 दैट इज़ योर 70। सो टोटल जो शबाना के नंबर ऑफ हॉलीडेज़ हैं वो हैं आपके 70 डेज़ के। आतिफ हॉलीडे, जो आतिफ के हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 मई से। ओके। एंड वो उनके स्कूल रीओपन हो रहे हैं 30 जून से। क्लियर। तो उनके हॉलीडे स्टार्ट भी जल्दी हो रहे हैं और उनके स्कूल भी जल्दी ही ओपन हो रहे हैं। तो उनको टोटल कितने डेज़ के हॉलीडेज़ मिल रहे हैं। सो जो आपका मई है वो है 31 डेज़ का। क्लियर। और आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं जून के 30 को, इट मीन्स 29 तक वो घर पे रहेंगे। तो इनको 1 से लेकर 29 तक की छुट्टी मिल रही है जून की। 31 डेज़ की मई की तो कंप्लीट छुट्टी है, लेकिन जून में 29 डेज़ की है। ओके। और 30 को वो स्कूल आ रहे हैं, तो आप 30 को काउंट नहीं करेंगे। सो टोटल इज़ 60 डेज़। ओके। सो आतिफ को जो है वो हॉलीडेज़ मिल रहे हैं 60 डेज़ के, बट शबाना को जो छुट्टियां मिल रही हैं वो मिल रही हैं 70 डेज़ की। सो हियर 70 and 60। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे, शबाना और आतिफ। किसको सबसे ज़्यादा छुट्टियां मिली हैं। सो ऑब्वियसली शबाना को सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ मिले हैं 70 डेज़ के, और आतिफ को 60 डेज़ के, तो शबाना को 10 डेज़ के ज़्यादा छुट्टियां मिली हैं। नेक्स्ट इज़ विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन द स्कूल, फिल इन द टेबल। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके समर हॉलीडेज़ कब से स्टार्ट होते हैं। ऑटम्स तो हमारे हॉलीडेज़ नहीं होते हैं, विंटर के कब होते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम्स के बाद हॉलीडेज़ पड़ते हैं वो कब होते हैं। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और नंबर ऑफ़ डेज़ मेंशन करेंगे। क्लियर। सो फॉर आवर स्कूल, अगर हम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे समर जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं 25 मई से। ओके। और हमारे स्कूल रीओपन हो जाते हैं 30 जून से। सो जो टोटल है हमको 35 डेज़ के हॉलीडेज़ मिलते हैं। 5 डेज़ आपके ये हो गए और 30 डेज़ आपके ये हो गए। क्लियर। ऑटम्स के हमें हॉलीडेज़ नहीं मिलते हैं। जो आपका विंटर ब्रेक है वो आफ्टर क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है 25 से, और स्कूल ओपन हो जाते हैं 15 से। सो 6 डेज़ आपके हो गए यहाँ पर दिसंबर के, और 14 डेज़ आपके हो गए जनवरी के। ओके। 14 क्यों, क्योंकि 15 को तो हम स्कूल आ रहे हैं ना, तो 15 को हम काउंट नहीं करेंगे एज अ हॉलीडे। सो 6 डेज़ के आपके हो गए दिसंबर के, और 14 को आपके हो गए 14 डेज़ जनवरी के। सो टोटल आपके 20 डेज़ की जो है विंटर वेकेशंस मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम, जो आपको एग्ज़ाम्स के बाद हॉलीडेज़ मिलते हैं। सो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 20 मई तक हो जाते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट अप्रैल में बुलाया जाता है। सो दैट इज़ योर 1 अप्रैल। सो टोटल जो है आपके वो आपको 10 डेज़ के एग्ज़ाम्स के बाद वेकेशंस मिलती हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ योर पेज नंबर 48. On 15th May 2006, Chandra went to a shop to buy butter. 15 मई 2006 को जो चंद्रा एक बॉय है वो बटर लेने के लिए, मक्खन लेने के लिए शॉप पे जाते हैं। ठीक है।
ही चेक द पैकेट टू सी इफ़ द बटर वॉज सेफ टू ईट। तो वो बटर के पैकेट में चेक करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट होती है कि आपका ये जो बटर है या आपके जो अदर फूड आइटम्स होते हैं जस्ट लाइक चिप्स, ब्रेड, पिकल्स और अदर फूड आइटम्स, जो आपके उसमें क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है जिसमें आपको लिखा होता है कि ये कब बना था, और एक एक्सपायरी डेट होती है कि ये कब चीज़ एक्सपायर हो जाएगी। इट मीन्स आप उसके बाद उसको नहीं खा सकते हैं, उसके बाद ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो वो उसमें चेक करते हैं। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया रहता है कि ये मैन्युफैक्चर होने से 180 डेज़ तक जो है वो सेफ़ रहेगा। तो 180 डेज़ को अगर हम मंथ में काउंट करना चाहें तो 180 डेज़, और टोटल अगर हम अप्रॉक्स लें तो मंथ में 30 डेज़ होते हैं। सो 0 0 कैंसिल एंड 3 6 80। सो टोटल आपके हो जाते हैं 6 मंथ। 30 मंथ्स एक मंथ, 30 डेज़ 1 मंथ में, सो अनदर 30 डेज़ अनदर मंथ में, तो टोटल 180 डेज़ आपके होंगे 6 मंथ्स में। ओके, सो आपके यहाँ पर है आंसर, दैट इज़ 6 मंथ। 6 मंथ्स में आपकी चीज़ जो है वो बटर 6 मंथ में आपका जो बटर है वो एक्सपायर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हेन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग इट वाज 15/1। तो पैकिंग डेट जो थी वो थी 15/1, इट मीन्स 15 जनवरी। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। तो आप उसकी हेल्प करो फाइंड आउट करने में कि उनको वो बटर खरीदना चाहिए या नहीं। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड। बटर कौन से मंथ में पैक हुआ है? सो 1 मंथ का मीन है यहाँ पे जनवरी। बटर जनवरी में पैक हुआ है। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1। कौन से मंथ में उसको 180 डेज हो जाएंगे? सो 1 मंथ में आप 6 मंथ काउंट कर दो, 6 मंथ ऐड कर दो तो टोटल होते हैं 7 मंथ, और 7th मंथ होता है हमारा जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो हमारा जो 7th मंथ है वो है जुलाई। तो 7th मंथ मीन्स 15 जुलाई को वो बटर एक्सपायर हो जाएगा। कैन चंद्रा ईट इट ऑन 15th मई 2006। क्या उसको 15 मई को वो खा सकते हैं? यस, जो आपका मई होता है वो 5th मंथ होता है, और ये बटर जो है वो 7th मंथ में एक्सपायर होगा, यानी कि वो उसको खा सकते हैं। सो आंसर इज यस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपके ऐसे ही कुछ एक्सपायरी डेट मेडिसिन्स में भी होती हैं। ठीक है, हमारे मेडिसिन्स में भी मेंशन होता है कि ये कब मैन्युफैक्चर हुई है और ये कब एक्सपायर हुई है, हो जाएगी। विच आर दी अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। ऐसे कौन कौन सी अदर चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? ऑन अ कप सिरप इट वॉज रिटन मैन्युफैक्चरिंग डेट 7/3। इट शोज़ इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। सो यहाँ पर जो 7 है वो मंथ को शो कर रहा है और 3 जो है वो ईयर को शो कर रहा है। यहाँ पे आपकी डेट मेंशन नहीं है, और ये एक्सपायर हो रहा है सेम 7 मंथ, बट ईयर इज़ 2005। सो ये 2003 में मैन्युफैक्चर हुआ, 2005 में ये एक्सपायर हो जाएगा। इट मीन्स 2 ईयर्स में ये कफ सिरप जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। वट मंथ एंड ईयर इट रिटन एज। अब अगर आपको किसी मेडिसिन में या किसी फूड आइटम में 7/5 लिखा है, इट मीन्स दैट इज़ योर 7 मीन्स जुलाई एंड 2005। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन September 2005। सो आपका 7th मंथ का मीनिंग है जुलाई। ओके, जुलाई 2005 में आपका कफ सिरप जो है वो एक्सपायर हो जा रहा है, और क्या आप उसको सितंबर में पी सकते हैं? तो सितंबर जुलाई के बाद आता है। ओके, सो आप इसको सितंबर 2005 में पी नहीं सकते, ये तब तक एक्सपायर हो जाएगा। सो आंसर इज नो। Next is our page number 49. Okay, so in that page as you can see here, टूटून की जो मम्मा है वो उनको कह रही है अपना बैग जल्दी से पैक कर लो, हमें 5:30 इवनिंग तक पहुंचना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जो टूटून है वो सोच रहे हैं कि काश मेरी ट्रेन छूट ही जाती। ओके, मुझे कम से कम घर तो वापस नहीं जाना होता। ओके, तो हुआ क्या, वो 5:15 पे स्टेशन पे पहुंच गए, पर वो क्या देखते हैं कि उनकी ट्रेन तो ऑलरेडी जा चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ आप सोच सकते हैं। 5:30 की ट्रेन थी, 5:15 पे वो पहुंच चुके थे, यानी कि वो 15 मिनट्स पहले पहुंच गए थे। तो ट्रेन छूट कैसे गई? क्या देखो, ट्रेन लेट तो आती है, बट ऐसा हो सकता है कि ट्रेन टाइम से पहले निकल गई?
नहीं, तो फिर वो छूटी कैसे? लेट्स चेक। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। जो ट्रेन है वो 5:30 मॉर्निंग में जा चुकी है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं इवनिंग में, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो वो टीटी से कहते हैं आर टिकट सेज 5:30, हमारे टिकट में तो 5:30 लिखा है, तो ऐसा कैसे हुआ कि ट्रेन मॉर्निंग में चली गई? तो टीटी जो है वो कहते हैं बट सर दिस मीन्स 5:30 इन मॉर्निंग। ओके, अगर आपके टिकट में 5:30 लिखा है तो वो उसका मतलब है कि मॉर्निंग के 5:30। तो वो कहते हैं ओहो ये मैं कैसे भूल गया, तो वो मॉर्निंग को इवनिंग समझ लेते हैं। तो इतना कन्फ्यूजन कैसे हुआ? रेलवे वालों ने वहाँ पे 5:30 AM और PM क्यों नहीं मेंशन किया? वाई? उनकी तो ट्रेन छूट गई। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे रेलवेज़ में जो टाइम है वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाता है। क्लियर? वाई 24 आवर्स? क्योंकि आपके दिन में देखो रात के 12 से दिन के 12 बजे तक तो हो गए आपके 12 आवर्स। क्लियर? और दिन के 12 से रात के 12 बजे तक टोटल हो गए 12 आवर्स। सो आपके जो आपकी वॉच है वो दिन में 2 टाइम्स 12 आवर्स शो करती है। सो 12 + 12 टोटल 24 आवर्स। ठीक है, तो आपके एक दिन में होते हैं टोटल 24 आवर्स। सो हमारी जो रेलवेज़ की वॉच है वो AM PM को यूज़ ना करके वो 24 आवर्स को मेंशन करती है। ओके, अब 24 आवर्स को कैसे मेंशन किया जाएगा? अगर आपके रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम है तो वो एज इट इज़ मेंशन होगा। पर जैसे ही आपके दिन के 1 बजते हैं तो पहले कितने हुए थे? 12 के बाद 1, सो टोटल आपके हो गए 13। सो आपकी जो 24 आवर्स वाली वॉच है वो मेंशन करेगी 13 आवर्स। वो उसमें 1 मेंशन नहीं होगा, उसमें मेंशन होगा 13 आवर्स। सो आपकी जो रेलवे की वॉच है, ये जो रेलवे के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके टिकट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, उसमें 1 आवर को मेंशन किया जाएगा 13 आवर्स। 2 आवर्स, दिन के 2 आवर्स 2 PM को मेंशन किया जाएगा 14 आवर्स। क्लियर? तो होता ये है कि उनकी जो टिकट में 5:30 रहते हैं वो उसको 5:30 इवनिंग सोच लेते हैं। जो रेलवे है, रेलवे 5:30 को क्या मेंशन किया जाएगा? 12 5:30 = 12 + 5 17 30। तो अगर रेलवे का टिकट इवनिंग के 5:30 का होता तो उसमें 17:30, 5:30 में 12 और जोड़ दो तो वहाँ पे 17:30। आपको समझ में आ रहा है ना कि हम 12 क्यों ऐड कर रहे हैं? हम 12 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो AM में 12 घंटे बीत चुके हैं उसको PM में ऐड किया जाता है, शाम को उसको ऐड किया जाता है, तभी तो कंप्लीट 24 आवर्स होते हैं। सो आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर जो टाइम मेंशन किया हुआ है उसको 12 आवर्स से 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 1 o'clock। सो अगर आफ्टरनून के 1 PM का टाइम हो रहा है सो इट मीन्स आपको मॉर्निंग के 12 AM और अभी का आपको 1 आवर ऐड करना है। सो 12 + 1 30। अगर 2 o'clock हो रहे हैं तो 12 + 2 14। अगर 3 o'clock हो रहे हैं तो 12 + 3 15 आवर्स होंगे। ठीक है, अगर 3:30 हो रहे हैं तो 15 30 आवर्स होंगे। 6 o'clock मीन्स 12 + 6 दैट इज़ 18 आवर्स। 9 o'clock मीन्स 9 + 12 और 12 + 9 so that is your 21 hours. Okay, 12 o'clock at midnight means 12 + 12 so that is your 24 hours. रात के जो 12 बजेंगे उसमें मॉर्निंग के टोटल 12 AM और इवनिंग के टोटल 12 AM पूरा काउंट होगा। सो आपके रात के ठीक 12 बजे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 12:01 से आपका न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ योर लास्ट पेज, पेज नंबर 51. Now can you tell why a 24-hour clock is called so? तो आप बता सकते हैं आपकी 24 आवर वाले क्लॉक को 24 आवर क्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टोटल 24 आवर्स मेंशन करती है, पूरे दिन के 24 आवर्स को मेंशन करती है, उसमें AM और PM वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होता है। सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 at night, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी।
सो सपोज़ कीजिए कि अगर किसी ट्रेन का टाइम है 8:30, तो वो रेलवे टिकट में क्या मेंशन होगा? 8:30 PM। सो 12 तो आप काउंट करेंगे जो आपके 12 AM में 12 आवर्स स्पेंड हो चुके हैं। अब उसमें आप ऐड करेंगे 8:30, सो 12 आवर्स में 8 आवर्स ऐड करेंगे, सो ये होगा आपका 20 आवर्स, दैट इज़ योर 20 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, सो आपका जो रेलवे टिकट है वो शो करेगा 20 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज you must have note the time of sunrise and sunset right here using AM and PM। ओके, तो आपके हमें पता है कि सनराइज़ जो होता है वो मॉर्निंग में होता है, तो हम उसको AM से शो करेंगे, और सनसेट क्योंकि शाम को होता है तो हम उसको PM से शो करेंगे। सो टाइमिंग ऑफ सनराइज़, तो दैट इज़ योर 6:30, अप्रॉक्स 6:30 में हमारा सनराइज़ हो जाता है, सो दैट इज़ योर 6:30 AM। टाइम ऑफ सनसेट, सो अप्रॉक्स हमारा 7:30 तक सनसेट हो जाता है, सो दैट इज़ 7:30 PM। हैव सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। आपने ऐसे रेलवे स्टेशन की ही तरह कहाँ कहाँ देखा है कि वहाँ पर 24 आवर की क्लॉक जो हो रही है यूज़ हो रही है। ओके, सो पोस्ट ऑफिस में हमारी 24 आवर की क्लॉक यूज़ होती है। एयरपोर्ट्स में हमारी जो है वो 24 आवर्स की क्लॉक यूज़ होती है। और कहाँ कहाँ पर हमारी 24 आवर्स की क्लॉक यूज़ होती है? पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट एंड बैंक्स में भी हमारी 24 आवर की क्लॉक यूज़ होती है। क्लियर? सो मोस्टली जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर को ही मेंशन किया जाता है, ताकि AM और PM का कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप इस वीडियो को देखिए। ओके, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप और कॉल करके पूछ सकते हैं। बट थिंग इज़ दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हम वॉच में टाइम कैसे देखेंगे, हम वॉच के टाइम के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ओके, इस और मंथ के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आफ्टर दिस सेशन वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन योर चैप्टर टिक टिक टिक, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो 2 times, and if you are able to understand your concept with the help of this video, just like, subscribe. Okay, thank you so much, have a good day.